Hi everyone, welcome back to the channel guys. My name is Anchak Garg and in this video I would be guiding you about your conundrum related to whether you should be preparing for RBI Grade B 2024 और 2025. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है and without any clarity when the examination is going to happen that gives you a kind of a confusion कि मैं 2024 के लिए प्रिपेयर करूं या कर सकता हूं या 2025 के लिए जाना चाहिए। तो इसी चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स व्हिच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग about this thing and what should be your approaches in case of 2024 and in case of 2025. So when I start with this discussion, सबसे पहले तो जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 2024 करना चाहिए और whether we should go for 2025, I think most of the times when we have less time, our heart says that go for 2024. मतलब हम जल्दी से जल्दी अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, whereas our brain might be convincing us कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, ये एक बड़ा गोल है। अब देखिए, आप जब ये क्वेश्चन सोचते हैं आपका अल्टीमेट गोल क्या है? योर अल्टीमेट गोल इज टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, और ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना भी आपका गोल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग बड़ा इन लाइफ। आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और दैट्स व्हाई यू हैव चूजन आरबीआई एज वन ऑफ द ऑप्शंस। एंड if you achieve this, this is going to define your life for next 35 years, right? The salary, the respect, the learning you are going to get will be for the next 35 years. And we know that because this is so important and this is so competitive, the process is not going to be easy. The process is not something which can be like, no, in 1 month we can be ready for it. तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि when the process is going to be competitive, you cannot decide it on the basis of your whims and fancies कि नहीं मुझे तो 2024 में ही करना है क्योंकि मेरा दिल कह रहा है। हमारा दिल हमें बहुत कुछ कहता है, बट वी हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ इट। तो हम इस पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। इस पॉसिबिलिटी को मैं पूरा डिटेल में खोल के बताऊंगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं भी है, सपोज कीजिए दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम 2024 में नहीं प्रिपेयर कर सकते, then also I would say because the process itself is about achieving your main goal and it's not about कि मैं 2024 में करूं या 2025 में करूं, बस मुझे करना है। So अगर आप 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, do not leave it कि यार मैं अब अक्टूबर में जाके शुरू करूंगा, नवंबर में जाके शुरू करूंगा। Start immediately and I'll tell you the reason। इस immediately start करने के पीछे लॉजिक ये है कि you have to divide your main goal into some milestones। आप इस बार के लिए माइलस्टोन सिर्फ इतना कर लीजिए कि मुझे फेज 1 क्लियर करना है। Because if you understand the requirement of phase 1 and clear phase 1, that will give you immense confidence for your next bet in the coming year। और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये मैं हैंडल कर सकता हूं। साथ ही साथ you will get exposure to phase 2, which is very very important। I'll tell you a story। One of my student appeared, I mean, in one of the year when he was not fully ready, but he got qualified for phase 2. Phase 2, when he gave, he realized that it's not easy to sit for 5-6 hours and give all the 3 exams in one day. It takes a toll on your body. उसकी वो सबसे बड़ी learning थी, and in the coming attempt, he was ready for it because he practiced lot of mocks, giving all the mocks in one single day, sitting for those 6 hours. तो ऐसी कुछ लर्निंग्स होती हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने बताया कि उस अटेम्प्ट में दो आई वाज नॉट रेडी, मुझे लग ही रहा था मेरा नहीं होगा, बट आई लर्नड अ लॉट अबाउट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसा विंडो होता है, कैसा कीबोर्ड होता है। सो दिस एक्सपोजर, राइट, दिस एक्सपोजर दैट यू गेट फॉर फेज 2, which is the ultimate selection criteria after clearing phase 1, no mentor, no video, no book can give you that experience। so ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 कि आप 2024 में ये एक्सपीरियंस ले लें। और आई थिंक द बेस्ट आइसिंग ऑन द केक वुड बी कि आपका फेज 2 भी कट ऑफ के पास जाके क्लियर हो जाए एंड यू गेट टू गिव द इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए, वो तो बेस्ट चीज है। आई थिंक वो तो सिलेक्शन पे ही हम चले गए हैं, बट वी आर कंसिडरिंग कि ठीक है आप ज्यादा रेडी नहीं है और आपको लग रहा है यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू द फाइनल माइलस्टोन, लेकिन ये इंटरव्यू अगर आपने दे दिया ना, आई कैन टेल यू दैट इज लाइक मतलब a boost in your confidence that you will get for the next year।
बट ऑब्वियसली अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वी शुड ऑलवेज गो टू गेट सेलेक्टेड एंड नॉट जस्ट टू अपेयर इन द इंटरव्यू. बट अगर इट सीम्स अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट फेज 1 को गोल बनाइए, फेज 2 का एक्सपीरियंस लीजिए, और मे बी इफ यू क्लियर फेज 2 देन as I told you, interview experience is going to give you a lot of confidence, and that exposure itself will help you to boost your marks in the next year. Now coming to this factor, ठीक है, ये तो हो गया कि ठीक है जी पॉसिबिलिटी नहीं है, then also you should start immediately, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो और स्टार्ट इमीडिएटली. अब पॉसिबिलिटी किन चीजों पे डिसाइड हो सकती है? आई थिंक इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली टाइम आता है, जो हमें लगता है, बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर इंटेंट आएगा. मतलब कितना आपको इसकी जरूरत है, कि हाउ मच पैशनेट यू आर अबाउट इट, हाउ मच बैडली यू वांट दिस थिंग. मतलब अगर हम सोच लें कि ये हमें करना है एंड वी बिलीव इन आवरसेल्व्स दैट वी कैन डू इट, इट एटलीस्ट हेल्प्स अस टू बी मोर प्रोडक्टिव बाय 2x. ये रियलिटी है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा, बट 8 महीने की चीज आप 3-4 महीने में कर सकते हैं. और टाइम की बात करूं, सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वेदर हैव यू गिवन एनी बैंकिंग एग्जाम इन द पास्ट, और यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी इन द पास्ट, और क्या आपका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बैकग्राउंड है, देन ऑब्वियसली द टाइम वुड बी लेस. मतलब फिर आप 2-3 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से. बट फॉर एन एवरेज कैंडिडेट आई वुड से 4 months. ठीक है, 3 might be, but 4 months is a good amount of time. और आज की डेट में आपके पास कितना टाइम है? See, as per the original dates that we got to know earlier, phase 1 was scheduled on 15th of June and phase 2 on 27th of July. तो अगर मैं इन डेट्स को भी अभी कंसिडर करूं, बिकॉज दीज आर नॉट टोटली रिजेक्टेड नाउ, देन ऑल्सो यू हैव अराउंड 3.5 months, एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि शायद ये और डिले हो जाए, देन यू विल हैव 4 और मोर देन 4 months. सो एक डिसेंट पीरियड है. बट हाँ, इफ यू वांट टू रिवाइज इट प्रॉपर्ली, इफ यू वांट टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन माइट बी यू रिक्वायर मोर टाइम. बट ये अच्छा खासा पीरियड है. काफी लोग बोलते हैं सर एप्टीट्यूड वुड ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर्स. यस एंड नो, बिकॉज आई फील if you meet the qualifying criteria, which is 60% in graduation, you have that aptitude, because this exam is not about कि बहुत ज्यादा कुछ इन डेप्थ चीजें पूछे जा रही हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में. क्वांट एंड रीजनिंग में यस यू वुड रिक्वायर अ डिसेंट एप्टीट्यूड, बट इट इज जस्ट क्वालिफाइंग. इट कैन बी मैनेज्ड अगेन, आई मीन इफ यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ये इंटेंट है एंड बिलीफ इन योरसेल्फ दैट आई कैन डू इट, इफ यू हैव सेल्फ डाउट, तो मतलब शायद आप नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर पाएंगे, राइट? सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड अलोंग विद दैट इंटेंट, टाइम आपके पास ठीक ठाक है, आप कर सकते हैं. यू शुड गो फॉर इट अगेन विद द सेम लॉजिक दैट इवन इफ यू डोंट क्लियर, एज आई टोल्ड यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली. बट इस केस में यू शुड प्लान इट फॉर योर सिलेक्शन एंड नॉट जस्ट फॉर फेज 1, कि मुझे फेज 1 क्लियर करना है, 4 महीने हैं, ठीक है, एक अच्छा खासा बिलीफ है, इंटेंट है, टारगेट योर सिलेक्शन, दैट्स इट. अच्छे से हमें पढ़ना है. अब इस केस में when it seems that I can do it, I'll give you 3-4 tips which you should be following. The first one, which is very very important, I would say, even if you are not prepared with all the topics, but you have good hold on answer writing. Answer writing बहुत important है, और editorials पढ़ना, which is part of answer writing itself. तो मतलब अगर आपने 2 चैप्टर छोड़ भी दिए ना, बट यू हैव गुड होल्ड ऑन आंसर राइटिंग, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू राइट अ डिसेंट आंसर टू अ क्वेश्चन फॉर विच यू जस्ट हैव एन आइडिया, यू डोंट नो 100%. और ये चीज हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है. मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, मैं बोलता हूं डेली करो डेली करो, लोग तो महीने में भी एक आंसर नहीं लिख रहे हैं. यू आर जस्ट digging your grave, that's for sure. If you are RBI grade B aspirant and you are not writing answers, you are not practicing daily, मैं तो सिर्फ आपको एक आंसर लिखने के लिए बोल रहा हूं. I should have told you that give a mock every second day, because that will actually test your capability to write 4 answers in a limited time and also check your sitting capability for such a long amount of time. But आप एक आंसर से शुरू कीजिए, प्लीज कीजिए. और अगर नहीं कर पा रहे हैं, ये एक असिस्टेड सीरीज है where we not only discuss the editorials but we also make you write answers which you can paste in the comment section, which we evaluate and give you feedback. आप एक आंसर राइटिंग के ये वीडियो देख लीजिए. दिस सीरीज इज named by Perspective 360 degree, taken by Jaskaran sir. ये सीरीज हमारी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, I'll just write it down here, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM होती है.
In this series, we discuss the most important editorials or current affairs which can be asked in your descriptive paper. हम उसका पूरा depth, breadth discuss करते हैं about what is the issue, what are the challenges, what are the solutions, everything. And then we give you a question, we ask you to write an answer on it, which you can paste in the comment section of the YouTube video, and we evaluate it. The answer that you paste in the comment section, we evaluate it for free. We give you detailed feedback. If you are not trusting me what I'm saying, you can just go to any of these videos जो 2-3 दिन पुरानी हो चुकी है and see how people have written answers there and we have evaluated them. तो ये सीरीज आप जरूर अटेंड कीजिए, इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आंसर राइटिंग की सॉल्व हो जाएगी. द सेकेंड इज अबाउट FM. तो पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था आंसर राइटिंग, दिस इज वर्थ 200 मार्क्स. 50 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव FM, 50 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव ESI एंड 100 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. FM इज ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो दिस इज अनदर 50 मार्क्स. And FM overall is the most scoring section. I've seen people scoring 80 in FM and 15 ESI, and they get an overall boost in their selection because they have scored really good marks in FM. So your first target, ठीक है, आप ESI छोड़ दो अभी, static वाला part. Your first target should be at least to complete FM, ठीक है, notification आने तक या notification आने के 15 दिन के अंदर अंदर. ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए. Third target, if I ask you about phase 1 in terms of tips, is you need a strategic preparation for quant and reasoning. First thing you need to understand that quant and reasoning जो आपकी बैंकिंग में क्लरिकल एग्जाम में आती है वो यहाँ पे काम नहीं आने वाली है. The level here is really high. If you ask me, this is say SBI PO mains level is what is being asked in your exam. So you really have to pull up your socks and be ready for this quant and reasoning. Second is quant and reasoning is not only about studying. You might study 500 hours for quant and reasoning. आपको लगेगा आपकी तैयारी होगी, but trust me, when you go to the exam, it's more about selection of right questions, managing your time, managing your emotions. तो मैं इसके लिए बार बार बोलता हूँ, quant and reasoning, when you are done with decent amount of chapters, start giving sectional test. आपका स्किल ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. द स्किल विच यू नीड इन द एग्जाम इज मोर अबाउट वेदर यू आर एबल टू पिक अप द राइट क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम इन द लिमिटेड टाइम यू हैव. अब क्वांट का एग्जांपल ले लो, यू गेट 30 क्वेश्चंस एंड यू गेट 25 मिनट्स. आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अनलेस एंड अंटिल यू आर गॉड इन क्वांट, आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे और सॉल्व तो 10 ही कर पाएंगे. तो हमें पूरे पढ़ने नहीं है, पूरे करने नहीं है. आप लिमिटेड चैप्टर्स करो, अच्छे से करो, सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन practice your knowledge by giving lot of sectional tests so that you not only test whether you are able to solve the questions but you also test whether you are able to pick the right questions in the limited time and solve them. ये चीजें साथ साथ चलेंगी. और तीसरी चीज जो मैंने अभी बताई कि आप सारा कुछ मत करो यार. क्वांट में मैं एग्जांपल देता हूं, आप मतलब कुछ लिमिटेड चैप्टर्स कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लो, परसेंटेजेस कर लो, रेशियो प्रपोर्शन कर लो, नंबर सीरीज, quadratic equations, profit and loss, interest, averages. इतने टॉपिक्स बहुत हैं, सारा क्वांट करने की जरूरत नहीं है. परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन नहीं है. आपको क्वेश्चन कितने उठाने हैं? 8 क्वेश्चन कर दिए, कट ऑफ क्लियर. ऐसी रीजनिंग में डोंट गो फॉर ऑल दी टॉपिक्स, स्पेशली डोंट base your selection just on the puzzles. Many people rely on puzzles कि puzzles आएंगे 30 नंबर के, वो कर लेंगे. और एग्जाम में in the first 15 minutes when you are not able to solve the puzzle, you are gone. So puzzles are, yes, they are having a very high amount of weightage, but they are tricky. Unless and until you are really good in that, don't play with fire. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी टॉपिक्स करें पहले, like blood relations, syllogism, reverse syllogism, रैंकिंग, डायरेक्शंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, और उन टॉपिक्स पे होल्ड बनाए. लेटर इफ यू गेट टाइम, यू प्रैक्टिस पजल्स. इन द एग्जाम आल्सो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम पजल्स एंड इन द रिमेनिंग टाइम गो फॉर पजल्स. पहले रीजनिंग में 25 मिनट में जितने क्वेश्चन पजल्स के अलावा हैं वो कर लो, 35 मिनट लगा लो. उसके बाद अगले अगर 10-15 मिनट आपको पजल्स करने भी हैं तो आप कर सकते हो. मेक श्योर पहले 30 मिनट में आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए. Otherwise, it would create a panic. And in reasoning, also solve lot of sectional tests in reasoning. That's very, very important.
It's not only about your knowledge, you have to be very selective in selecting the questions and solve them in limited time. आपकी जो कैपेबिलिटी टेस्ट हो रही है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट हो रही है क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम में राइट क्वेश्चंस को पिक करना। और यही चीज आपको जॉब में भी करनी होगी, पिकिंग अप द राइट चैलेंजेस एंड सॉल्विंग देम एंड नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन समथिंग व्हिच शुड नॉट बी टेकन ऑन प्रायोरिटी। सो क्वांट में लेवल हाई आएगा, सेक्शनल टेस्ट बहुत देने हैं और लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं, ये तीन चीजें आपको समझनी है। एंड लास्ट अबाउट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में सबसे पहले मेनी पीपल हैव अ काइंड ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग या मिथ के करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ लो, द सेम वुड बी हेल्पफुल इन आरबीआई। नो, द करंट अफेयर्स इन आरबीआई एट अ डिफरेंट लेवल। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। आरबीआई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आरबीआई नोटिफिकेशंस, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई सर्कुलर से आते हैं। And these are not asked in other banking exams, or even if they are asked, they are not asked in that depth. तो आपको ये बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में नहीं कराया जाएगा। एंड व्हेन यू गो टू द एग्जाम यू विल रियलाइज दैट यू माइट हैव रेड ऑल द करंट अफेयर्स दैट वर मेंट फॉर अदर एग्जाम्स, बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू माइट थिंक कि पता नहीं कहां से एग्जाम आ गया। तो आरबीआई नोटिफिकेशंस हमें करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये ESI न्यूज reports, the first 4 things that I've written here, they are not only about phase 1. phase 1 में जो 80 मार्क्स का पेपर आता है उसमें 50 से 60 मार्क्स के फर्स्ट 4 सेक्शंस आएंगे, एंड these are also important for your phase 2. phase 1 में जो एक चीज है जो phase 2 में नहीं आती करंट अफेयर में, वो सिर्फ GA है, जहां पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इवेंट, समिट्स, अवार्ड्स, सारी चीजें पूछी जाती। But the first 4 sections should be taken more on priority because these are not only for phase 1 but also for phase 2. और ये हमें, अगर पहले 4 sections की बात करूं तो 5 months of current affairs preceding the exam till 1 week before the exam. एग्जाम 30 जून को है, 23 जून तक कर लो, 23 जून से 5 महीने पीछे चले जाओ, लास्ट वाला 3 months, इतना काफी है। और ये अगर 5 महीने के नहीं भी कर पा रहे हो, एटलीस्ट ट्राई टू गो फॉर 3 months, मतलब इससे कम तो चलेगा ही नहीं। सो द सेकेंड अप्रोच इज 3 months के आप आरबीआई नोटिफिकेशन, स्कीम्स, ESI न्यूज और रिपोर्ट्स कर लो। बाकी 2 महीने जो मैंने बोला था जो आप नहीं कर रहे हो, उसके यू जस्ट गो फॉर द MCQs फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो दैट आप मैक्सिमम स्कोप उनका कवर कर पाए। और एक ही सोर्स फॉलो करनी है, एक ही सोर्स फॉलो करो। टॉपर्स भी आपको बहुत कुछ बोलेंगे, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, बट ट्रस्ट मी यू कैन फॉलो ओनली वन सोर्स। इवन इफ उसके बाद भी अगर आपको कीड़ा आता है कि नहीं और पढ़ना है, पूरा नहीं हुआ है, तो MCQs कर लो ना यार। बाकी जितने भी सोर्सेज हैं, कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे MCQs कर लो। जो नहीं आता वो MCQ से रिवर्स इंजीनियर कर लो, लेकिन पूरा का पूरा 2-3 इंस्टीट्यूट्स का मैगजीन्स पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। डोंट गो फॉर इट। That's not even in the remotest strategy that I would even tell you to do. तो ये 3-4 टिप्स हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग पे फोकस करो, FM को किसी तरह कर लो, वेरी स्कोरिंग पोर्शन। क्वांट रीजनिंग में बैंकिंग, IBPS PO, SBI PO लेवल का करो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करो और लिमिटेड चैप्टर्स करो, बट अच्छे से करो। करंट अफेयर्स में डू नॉट बैंक अपॉन योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर एनी अदर एग्जाम। Focus on these areas, very important, and priority should be in this order. GA is important, but it is only as in phase 1. phase 1 ही clear कर लोगे, फिर phase 2 में कुछ नहीं होगा। Do it from only one single source and do it only for 5 months. That's it. Don't go beyond that. Impossible to retain so much. ठीक है, इनको समझो। Smart strategy followed by hard work gives you right combinations. गधे की तरह नहीं पढ़ना है, थोड़ा घोड़ा बनना सीखो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, 4 महीने पढ़कर भी ले सकते हो, बट अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है, इंटेंट नहीं है, तो 2025 के लिए तैयारी करो। स्टार्ट नाउ और इंटेंट लाओ कि इस साल phase 1 तो क्लियर करके रहूंगा, ठीक है। एंड दिस इज द गाइड बुक। हाँ, ये मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे कुछ सेशंस हैं गाइड बुक बताने से पहले, कि अगर आप इन चीजों में आपको लग रहा है कि सर नहीं मैनेज हो रहा है, क्योंकि आरबीआई वेबसाइट से जब आप ये पढ़ेंगे काफी टेक्निकल लगेगा, ठीक है, या फिर आप स्कीम्स वैसे PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट से पढ़नी चाहिए। इसके लिए आई वुड से हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट बिकम्स वेरी
वास्ट काइंड ऑफ एन ओशन फॉर यू टू फॉलो सो मेनी सोर्सेज। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप हमारी ये सीरीज देखिए, ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 PM वी कवर जीए प्लस ईएसआई न्यूज एवरी ऑल्टरनेट डे। तो आपकी ये जो 2 पोर्शन है जीए और ईएसआई न्यूज, ये इस सीरीज से कवर हो सकते हैं टू एन एक्सटेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% कवरेज होगा, बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएंगी। देन फॉर आरबीआई नोटिफिकेशंस वी हैव दिस, ठीक है, फाइनेंस 360 डिग्री सीरीज में कृतिका मैम हेल्प्स यू कवर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई नोटिफिकेशन सर्कुलर्स। ये सीरीज हमारी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 10 AM चलती है, ठीक है। वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 PM, ये 10 AM। एंड दिस इज अ सीरीज ऑन स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज है जो दीक्षा मैम लेते हैं। ये एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 10 AM होती है, वेयर वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो गाइस बहुत कुछ है आपके लिए दैट वी आर रनिंग ऑन यूट्यूब, बट इन द एंड इट्स ऑल अबाउट इंटेंट दैट आई हैव टॉक्ड अर्लियर। इंटेंट, सेल्फ बिलीफ इज द की टू एटलीस्ट मेक अप योर माइंड कि आपको सीरियस अटेम्प्ट देना है, नहीं तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। बस एक गोल है जो आपके मन में आपको एक शांति दे रहा है दैट आई एम डूइंग समथिंग, बट इन द एंड you know in your heart that you are not going to achieve the result that you are aiming for. बात कड़वी है बट ये सच्ची है, इसके बारे में सोचिएगा। And this is the guidebook that I want to tell you in case you are new to RBI और आपको ज्यादा नहीं पता है RBI के बारे में। This guidebook will give you all the information about RBI Grade B or RBI as an organization, about the promotions, hierarchy, salary, transfers and everything. And for preparing for RBI Grade B also you will get good amount of information here. I'll focus on 3 things which you will get here. The previous year questions for RBI for both phase 1 and phase 2 you will get here. The detailed book list and resources that you need to follow you will get here. And the third one is the detailed syllabus. ये syllabus आपको notification भी नहीं मिलेगा, that we have decoded using previous year papers and we have given you in this guidebook. तो guidebook आप download कीजिए. The link to download this guidebook is given in the description of this video. That is entirely free. Just download this, start reading and get motivated towards your goal. And these are our courses for RBI Grade B. We have a gold package and a silver package. Gold pack is complete solution for phase 1, phase 2 and interview. Silver package is mainly for phase 2 and interview, but phase 1 current affairs you will also get in silver pack. You will not get quant, reasoning and English in the silver pack, but you will get that only in the gold pack. Apart from that, everything is almost the same. And in case you want to check a demo material, there is a description link in the description. Click on that link to download the demo material. Check by yourself quality कैसी है, comprehensive है या नहीं, can you rely on this without going anywhere else. वो comprehensiveness आप check कीजिए. I think that will give you a fair idea that what is the quality of this course. So take your leave now. Have a nice day. Bye bye. Jai Hind.